that is electrochemical cell and the Gibbs energy of the reaction. See, now we have to show the relation between the electrochemical cell and the Gibbs free energy. See, electrochemical cell, if we are talking about, we are basically talking about the cell potential. What is the important part with the electrochemical cell? अगर electrochemical cell का कुछ important part है तो वो उसका क्या है? It is the cell potential. We are going to relate it with the Gibbs free energy of the reaction. मुझे cell के Gibbs free के साथ भी क्या करना है? I have to show the relation. Fine. So देखो Gibbs free energy हमें देखो basically there is a reaction, a thermodynamic equation is there. Del G is equals to del G naught plus RT ln Kc, और you can say RT ln Qc is even been written there. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि RT ln Qc, ठीक है, ये एक रिएक्शन है. This is the thermodynamic equation in which this is the Gibbs free energy at any time other than the standard condition. This is the standard Gibbs free energy plus RT ln Qc. Okay, this is the one normal reaction which has been used. Okay, so on putting the values of this reaction, देखो अगर मैं इसमें ऐसे लिख रही हूँ del G को हम कैसे दिखाते हैं? del G is equals to minus is equal to minus NF E cell. देखो एक कॉमन सी तुम्हारे पास एक इक्वेशन है. दिस इज अ रिलेशन. अगर हम आगे पढ़ेंगे आई एम गोइंग टू राइट अनदर इक्वेशन दैट इज del G cell Gibbs free energy of an equation is equals to minus NF E cell. अगर मैंने इसी को स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लिया del G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल. देखिए अगर मुझे फ्री एनर्जी निकालनी है किसी भी सेल की अदर देन द स्टैंडर्ड कंडीशन, वी आर यूजिंग दिस वन. बट इफ आई वांट टू फाइंड आउट द फ्री एनर्जी ऑफ द सेल एट इट्स स्टैंडर्ड कंडीशन, देन वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन माइनस NF E नॉट सेल, वेयर n जो आपके पास n की वैल्यू है, ये क्या है मेरे पास जो n है, द n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमें ये बताता है. और E नॉट सेल मुझे क्या बताता है? E नॉट सेल टेल्स मी द स्टैंडर्ड EMF. क्या बताता है मुझे? स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल. Same, the value of E is also the same here, and E cell is the total or the complete EMF of the cell at other than the standard condition. On putting the values of those in this equation, if I am rewriting the equation, हम देख सकते हैं minus NF E cell is equal to minus NF E naught cell plus RT ln Qc. Okay, so now what I want to do, I am dividing the entire equation by NF. मैंने क्या किया? पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं. काम करते हैं डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय NF. मैंने किससे डिवाइड कर दिया? पूरी इक्वेशन को NF से डिवाइड कर दिया. सो दिस इज गोइंग टू रिटर्न एज माइनस NF E cell and dividing this by NF is going to give me minus NF E naught cell dividing this by NF plus RT ln Qc dividing by NF. Okay, so on solving this equation, if you see, if I am solving this equation, NF gets cancelled, this NF gets cancelled, and now the final reaction, the final part of this reaction can be written as, I am writing it here, can be written as E minus E cell is equal to minus E naught cell plus RT upon NF log Qc. Now to remove this minus, what I am going to do, I am going to multiply the entire equation by minus. मैंने पूरी equation को एक बार minus से multiply कर दिया, minus 1 से. So what I am going to get, I am going to get E cell is equal to E naught cell minus what it will become RT upon NF and log Qc. So this is the reaction which we have studied right now. That is your Nernst equation. This is the Nernst equation. हमने अभी 2 मिनट पहले ही ये वाली रिएक्शन पढ़ी है. कौन सी है? दिस इज द योर नर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, सो ये जो नर्स्ट इक्वेशन की डिराइवेशन है, दिस इज बीन डिराइव्ड बाय यूजिंग द गिब्स फ्री एनर्जी. एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट? दैट इज द रिलेशन बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट इज द E नॉट पोटेंशियल और द सेल पोटेंशियल विच इज बीन रिलेटेड विद द योर गिब्स फ्री एनर्जी.
द वैल्यू ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी टेल्स यू अबाउट, सी ये जो वैल्यू है आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी की, द वैल्यू ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी इट टेल्स यू अबाउट द स्पॉन्टेनिटी। कौन से बताता है आपको? स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है, दैट वेदर योर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर रिएक्शन की वैल्यू या डेल जी की वैल्यू इफ इट इज कमिंग नेगेटिव, अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। कौन सा है? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। पर अगर रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है देन इट विल बिकम योर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैसी बनती है मेरी रिएक्शन? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो हमारे पास यहाँ पे जो डेल जी की वैल्यू आएगी ना, हम उससे वी कैन प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन विल अकर और रिएक्शन विल नॉट अकर। देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि रिएक्शन सेल में चलेगी, मतलब सेल की जो रिएक्शन है वो काम करेगी और आपको प्रोडक्ट देगी। पर अगर नॉन स्पॉन्टेनियस आ रहा है मतलब क्या है कि रिएक्शन विल नॉट अकर, सो दैट सेल इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट विल बी अ नॉन वर्किंग सेल। नॉन वर्किंग सेल बनाएगा ये आपका। पर अगर नेगेटिव में आ रही है मतलब योर सेल विल वर्क, इट इज अ वर्किंग सेल। कैसा रहेगा सेल मेरा? सेल विल बी इन द वर्किंग कंडीशन। ओके, सो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन द माइंड, द बेसिक रिलेशन इज ऑफ दिस वन। कौन सा है तुम्हारा मेन बेसिक रिलेशन? जब हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकाल रहे हैं और स्टैंडर्ड जब स्पॉन्टेनिटी निकाल रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल लेना है। और जब हम सिर्फ सिंपल निकाल रहे हैं तो हमें क्या निकालना है? वी हैव टू टेक द ई सेट। So keeping this thing keeping that thing very much clear, once again I am writing here del G is equals to minus NF E cell, and for the del G naught it is minus NF E naught cell. N stands for the number of electron transfer, F stands for the Faraday, and E cell and E naught is well known to you. Del G, if the value comes negative, the cell is spontaneous. The cell is spontaneous, and if it is positive then it is your non-spontaneous. Then it is a non-spontaneous cell. Okay, so now keeping the values in that and solving this question, the standard electrode potential of the cell is 1.1. किसकी वैल्यू दी गई है? मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज बीन रिटन हियर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन। किसकी वैल्यू दी गई है? दे आर गिविंग मी द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू इज गिवन ऑफ द ई नॉट सेल। किसकी वैल्यू दी गई है? ई नॉट सेल। द वैल्यू इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन। किसके लिए फाइंड करनी है मुझे? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करनी है, मतलब आई हैव टू कैलकुलेट डेल जी नॉट सेल। ये फाइंड करने के लिए कहा गया है। सो इसका रिलेशन क्या है? डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। नाउ व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे +2 से इट इज बिकमिंग 0, 2 electrons are being transferred. Here from the 0 it is getting converted to +2, so 2 electrons are being transferred. So keeping the values here in this one, n की वैल्यू कितनी आएगी? 2, फैराडे की वैल्यू 96500, and multiplying this with the E naught cell, कितनी वैल्यू दी गई है हमको? 1.1 वोल्ट is been given. So on solving this equation, 2.2 multiplying by 96500, we will get the value. As the value is coming in negative, so this cell will be a your spontaneous reaction. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी डेल जी की, डेल जी नॉट की, वो नेगेटिव में ही आएगी। क्यों? क्योंकि ई नॉट सेल की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। हमने क्या देखा? अगर ई नॉट सेल की वैल्यू, इसकी वैल्यू इफ इट इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली डेल जी क्या आने वाला है? इट विल बी नेगेटिव। ओके, बट अगर बाय चांस व्हाट हैपेंस इफ दिस वैल्यू इज नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी? इट विल बिकम पॉजिटिव। सो विद द पॉजिटिव इट इज योर नॉन स्पॉन्टेनियस, and when the reaction is positive, it is going to react with this one and it is going to negative, so it is your spontaneous cell. हमने भी देखा कि इसकी जो सेल की रिएक्शन है वो प्लस में है, so my value comes as the negative. So in short, my cell will be my spontaneous cell and the reaction will occur in the cell. But if the E naught cell is negative, so if the value goes with the cell is a negative, then my del G will also come as my
positive, so it will give me a non-spontaneous cell. So basically we can see that the application of the Gibbs free is to find out whether the reaction will occur or not. क्या मेरा सेल काम करेगा या नहीं, ये बताने के लिए कौन बताता है हमें, डेल जी की वैल्यू. और डेल जी की वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर करती है, वो करती है तुम्हारे पोटेंशियल के ऊपर. और पोटेंशियल की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल ऑफ द एनोड एंड द कैथोड. Okay, so keeping that thing in mind, we will end up the topic here. Thank you.